ایران کا اپنے بحری جہاز کی تباہی کے بعد بحر ہند میں امریکی ڈسٹرائر پر میزائل سے جوابی وار. جنوبی ساحل سے 650 کلومیٹر دور کھلے سمندر میں کھڑے امریکہ کے بحری جہاز میں آگ لگ گئی. امریکہ کا بحر ہند میں سری لنکا کے قریب ایرانی بحریہ کے جہاز پر حملے میں 87 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق. 32 سیلرز کو ریسکیو کیا گیا. امریکہ نے ایرانی جہاز تباہ کرنے کی ویڈیو جاری کر دی. اسرائیل نے تہران کے قریب ارمیا میں بچیوں کے ایک اور اسکول پر میزائل حملہ کیا. کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. اسرائیلی حملے میں ایرانی آذربائیجان غربی میں بلڈ بینک تباہ کر دیا گیا. خطے میں امن و استحکام مشترکہ کاوشوں سے ممکن. ہمسایہ ممالک دوست ہیں. امریکی اور سہیونی جارحیت نے دفاع کے سوا کوئی راستہ نہیں چھوڑا. ایرانی صدر کا پیغام. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا قطری وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ. واضح کیا کہ حملوں کا ہدف صرف امریکی مفادات ہیں. قطری وزیر اعظم نے عباس عراقچی کا دعویٰ مسترد کر دیا اور کہا کہ ایران رہائشی اور صنعتی علاقہ جات کو ٹارگٹ کر رہا ہے. ہر خطرے کا جواب دیں گے. مرجع تقلید آیت اللہ سیستانی کی ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت. کہا جارحیت دنیا کے لیے وسیع بحران نتائج کا سبب بن سکتی ہے. مخصوص شرائط مسلط کرنے یا سیاسی نظام گرانے کی کوشش خطرناک ہوگی. اسلامی ممالک جنگ فوری طور پر رکوائیں. ایرانی پاسدارانی انقلاب کا آبنائے ہرمز میں 10 آئل ٹینکرز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. تیل بردار جہازوں کی عالمی گزرگاہ پر کنٹرول مکمل کر لیا. پابندی کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ٹارگٹ کیا گیا. IRGC کا اعلامیہ. ٹرمپ کا آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے اقدامات کا فیصلہ. تیل بردار جہازوں کی حفاظت امریکی بحریہ کے سپورٹ کی جائے گی. جہازوں کی انشورنس کی گارنٹی امریکہ دے گا. ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بیان. جنگ میں ہر گزرتے دن کے ساتھ شدت آنے لگی. امریکہ اور اسرائیل کے ایرانی کردستان حملے. بڑے پیمانے پر تباہی پھیل گئی. ایران پر امریکی حملوں میں اب تک 1000 سے زائد شہری جاں بحق ہو گئے. امریکہ میں انسانی حقوق کمیٹی کے مطابق مرنے والوں میں 150 سے زائد بچے شامل ہیں. ایران کا امریکہ اور اسرائیل کو منہ توڑ جواب. خلیجی ممالک میں امریکی اہداف ایران کے نشانے پر. کویت میں امریکی بیس پر میزائلز اور ڈرونز کی بارش. سعودی دارالحکومت ریاض میں CIA اسٹیشن اور دبئی میں امریکی قونصل خانوں پر ڈرونز حملے. قطر میں مشرق وسطی کے سب سے بڑے امریکی فوجی اڈے العدید بیلسٹک میزائل سے حملہ. ایران کا جنگ کے دوران 620 امریکی فوجیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ. امریکہ نے کویت میں ایرانی ڈرون حملے میں ہلاک 4 فوجیوں کی شناخت جاری کر دی. اسرائیل کا دفاعی نظام ایران کے جوابی حملے روکنے میں ناکام. ایران اور حزب اللہ نے بیک وقت صہیونی ریاست پر میزائل داغ دیے. تل ابیب، حیفا اور مقبوضہ بیت المقدس میں ہائپرسونک میزائلز کے حملے. اسرائیلی خوفزدہ ہو کر بنکرز میں چھپ گئے. میزائلز گرنے سے عمارات اور گاڑیاں تباہ ہو گئیں. پاسداران انقلاب نے پورے اسرائیل کو مقبوضہ علاقہ قرار دے دیا. اسرائیلی عوام کو مقبوضہ سرزمین چھوڑنے کی وارننگ. دشمن کا تھکا کر ہارنے کا اعلان. اسرائیلی شہر یروشلم میں ایرانی میزائل حملے سے تباہی. گزشتہ روز کیے جانے والے حملے کی فوٹیج سامنے آ گئی. 9 افراد ہلاک، درجنوں زخمی. لیبنان میں حزب اللہ بھی صہیونی فوج کے خلاف برسرے پیکار. ایک ٹینک تباہ کر دیا گیا. جنگی بحری جہاز قبرص پہنچ گئے. یونانی فری گیٹس کیمون اور پیسارا برطانوی فوجی اڈے کے قریب تعینات. پیسارا جہاز میں حوثیوں کے خلاف استعمال کیا گیا ڈرون چکن نظام نصب. برطانوی ایئر بیس پر حملے کے بعد یونان نے F-16 طیارے قبرص پہنچا دیے.
फ्रांस भी एंटी ड्रोन सिस्टम और एंटी मिसाइल सिस्टम कब्रस भेजेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने मुज़ाकरात के दौरान अमरीकी हमले को डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गद्दारी करार दे दिया। अमरीका ने मुज़ाकरात को जायदाद की सौदेबाजी समझा, झूठ का सहारा लिया और इसी बाइस मुज़ाकरात नाकाम हुए। अब्बास अराग़ची का बयान। ईरान के सरकारी टीवी ने अमरीकी और इस्राएली फौज के हमले में शहीद 168 एलिमेंट्री स्कूल की तालिबात में से चंद की आखिरी वीडियो जारी कर दी। शजरे तैयबा एलिमेंट्री स्कूल ने महदोवी दस्तरखान का एहतमाम किया। बच्चियों और असातिज़ा की इज्तिमाई तदफीन के मौके पर रिक़्क़त आमेज़ मनाज़िर। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का ईरानी मिसाइल हमलों में 86 और ड्रोन हमलों में 73% कमी का दावा। ऑपरेशन में अब तक 2000 ईरानी अहदाफ को टारगेट करने का एतराफ़। ईरान ने इसराइल को बैरूत पर सिफारत खाने पर हमले से खबरदार कर दिया। ईरानी सिफारत खाने पर हमला हुआ तो दुनिया भर में इसराइली सिफारत खानों को निशाना बनाएंगे। ईरानी फौज के तर्जुमान का इंतबाह। पाकिस्तान अपना एक जिम्मेदाराना किरदार वो अदा कर रहा है, आइंदा भी करेंगे। जनाब स्पीकर, हम इस जंग का ना हिस्सा बनना चाहते हैं, ना किसी एक पलड़े में अपना वजन डालना चाहते हैं। हम एक अच्छे पड़ोसी, एक अच्छे भाई की हैसियत से इस इलाके में अमन की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान ने ईरान, अमरीका, इसराइल जंग का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया। पाकिस्तान अपना विजन किसी के पलड़े में नहीं डालेगा। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। कशीदगी में कमी और खित्ते में क़याम अमन के लिए काविशें जारी रखने की जरूरत पर जोर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्लिमानी रहनुमाओं का बंद कमरा इजलास। शुरका को पाकिस्तान अफगानिस्तान सूरत हाल, ईरान, मशरिक़ वुस्ता और खलीज में कशीदगी और पाकिस्तान की सिफारती काविशों पर तफसीली ब्रीफिंग। शुरका का मौजूदा हालात में मिली इत्तेहाद, इत्तेफाक और यगानियत की जरूरत पर जोर। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती काविशों को सराहा। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान की बंद कमरा ब्रीफिंग में शिरकत। महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास शरीफ नहीं हुए। वज़ीर आज़म ऑफिस से एलामिया जारी। कब तक हम इनके साथ इस तरह की बैठते रहेंगे? अगर हमें वैल्यू भी नहीं करते, हमारे वॉइस को वैल्यू नहीं करते, हमारे बैठने को वैल्यू नहीं करते, हमारी पार्लियामान में एग्जिस्टेंस को वैल्यू भी नहीं करते, बावजूद इसके कि हम तो समझते ये स्ट्रेंजर है, खान साहब के साथ मुलाकात ही नहीं होने दे रहे, उनके डॉक्टर उनसे मिलने नहीं दे रहे, उनकी फैमिली मेम्बर उनसे मिलने नहीं दिया गया, उनकी एक ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे भी सियासी अहमियत तस्लीम नहीं की जाती, पार्लियामान में मौजूदगी तस्लीम नहीं होती। बानी PTI से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। हुकूमत ने कौमी सलामती पर उसूली मौक़िफ़ अपनाया तो पार्लियामेंट में ब्रीफिंग दी जाए। बैरिस्टर गौहर का मुतालबा, सिर्फ फोटो सेशन के लिए हुकूमत के साथ बैठने से इनकार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके बाना का दौरा। यादगार शहदा पर हाज़िरी, मगरबी सरहद पर सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा। ऑपरेशन गज़ब लिल हक और पाक अफगान सरहदी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। जंग के बावजूद पाकिस्तान में रवा माह तेल के ज़खायर मौजूद। डीजल और पेट्रोल के 28 दिन, क्रूड ऑयल के 38 दिन के ज़खायर मौजूद। 15 दिन इस्तेमाल की LPG बाकी। वज़ीर ख़जाना का तवानाई बचत मुहिम शुरू करने का ऐलान। पाकिस्तान की सऊदी अरब से याम्बो बंदरगाह के मुतबादिल रूट से तेल की सप्लाई की दरख्वास्त। सऊदी हुकूमत की ताउन की यकीन दहानी। पाकिस्तान की सऊदी अरब से मुतबादिल रूट से तेल की सप्लाई करने की दरख्वास्त। सऊदी अरब ने हंगामी सूरत हाल में याम्बो बंदरगाह से तेल सप्लाई करने की यकीन दहानी करा दी। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की सऊदी सफ़ीर नवाफ अल मालिकी से मुलाकात। सऊदी सफ़ीर ने पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन जारी रखने का अज़्म दोहरा दिया। ऑपरेशन गज़ब लिल हक में अफगान तालिबान रजीम के 481 कारिंदे हलाक, 690 जख्मी। 226 चेक पोस्टें तबाह कर दी गई। पाकिस्तान ने 35 पोस्टों पर कब्जा किया। 198 टैंक्स, 72 बंद गाड़ियां और तोपखाने तबाह हुए। 56 मकामात को फजाई कार्रवाई के जरिए मौसर तौर पर टारगेट किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने ऑपरेशन गज़ब लिल हक से मुताल्लिक
ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। पाकिस्तान के हमले में अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस का एयरक्राफ्ट हैंगर और 2 वेयर हाउसेस तबाह कर दिए गए। बगराम एयरबेस पर कार्रवाई की सैटेलाइट फुटेजेस जारी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने कामयाब कार्रवाई की तस्दीक कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा। ऑपरेशन ज़रब लिल हक में कामयाबी पर इजहार तशक्कुर और पाक फौज को खिराज तहसीन। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के इत्तला पर पेशरफ्त का जायजा। कोयटा में वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का 21वां इजलास। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की शदीद मसम्मत। मुअस्सर दिफाई हिकमत अमली और बर वक्त जवाबी कार्रवाइयों पर पाक फौज को खिराज तहसीन। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने दहशतगर्दी, मुनज़्ज़म जराइम, लैंड माफिया और गैर कानूनी असलहा रखने वालों के खिलाफ मरबूत ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत कर दी। मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा। वज़ीर आला सिंध फोरेंसिक साइंस लैब दिसंबर 2026 तक मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध की कराची में ईरानी काउंसिल जनरल से आयतुल्लाह खामनाई और दीगर की शहादत पर इजहार ताज़ियत फातिहा ख्वानी की। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह भी वज़ीर आला के हमराह थे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान की इस्लामाबाद में ईरानी सफारत खाने आमद। ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत पर ईरानी सफीर रजा अमीर मुकद्दम से ताज़ियत। अमरीका और इसराइल की खुली दहशतगर्दी की शदीद मसम्मत। सहमाही के बाद महाना एडजस्टमेंट के तहत बिजली महंगी। कराची समेत मुल्क भर के लिए 3 यूनिट बिजली ₹1.63 महंगी कर दी गई। नापरा ने नोटिफिकेशन जारी किया। लाइफ टाइम सार्फिन और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर इत्तलाक नहीं होगा। हरीपुर के सयाहती मकाम खानपुर स्पिलवे के करीब पहाड़ी पर खौफनाक आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की शोलों पर काबू पाने की काबिशें। जंगली हयात भी खतरे से दो चार। फायर ब्रिगेड की मजीद गाड़ियां तलब कर ली गईं। एबटाबाद में कहियाल चौक के गोदाम में आग भड़क उठी। ईरान पर हमले से कबल मोदी की इस्राइल यात्रा। टाइमिंग ने संगीन सवालात उठा दिए। मोदी ने दौरा इस्राइल में नेतन्याहू को ईरान के खिलाफ मदद की यकीन दहानी करवाई थी। साबिक अमरीकी वज़ीर दिफा के मुताबिक अमरीकी बहरिया ईरान के साथ बढ़ती कशीदगी के दौरान भारतीय बंदरगाहें इस्तेमाल कर रही है। मुल्क भर में अगले जुमे को यौम वहदत मनाने का ऐलान। पाकिस्तान की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दम है। पुरअमन एहतजाज सबका हक है। दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं। रियासत अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमा वक्त तैयार है। अल्लामा ताहिर अशरफी का कौमी अमन कमेटी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के बाद मुल्क में पुरतशद्दुद मुजाहिरों से गुरेज का मशवरा। पंजाब भर के तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट्स को मखसूस नंबर्स अलॉट करने का फैसला। फिल्ट्रेशन प्लांट्स के बाहर हेल्पलाइन, प्लांट नंबर, ऑपरेटर का नाम और मोबाइल नंबर दर्ज होगा। पंजाब के तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट्स की जियो टैगिंग 10 रोज में मुकम्मल की जाएगी। T20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल। न्यूजीलैंड की जनूबी अफ्रीका के 170 रन हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी। कीवी ओपनर्स का शानदार आगाज। साबिक़ कप्तान सरफराज अहमद को पाकिस्तान टेस्ट टीम का हेड कोच मुकर्रर किए जाने का इम्कान। अजहर महमूद का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुआहिदा खत्म होने के बाद रेड बॉल हेड कोच का अहदा खाली है। सरफराज अहमद अंडर 19 वर्ल्ड कप में कौमी टीम के साथ बतौर मेंटोर जिम्मेदारियां अंजाम दे चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नेशनल T20 कप के स्क्वाड का ऐलान कर दिया। टूर्नामेंट 7 मार्च से पेशावर में खेला जाएगा। बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज से ड्रॉप होने के बाद साबिक़ कप्तान बाबर आजम नेशनल T20 से बाहर हो गए। और एक्शन थ्रिलर फिल्म डिस्क्लोजर डे की नई झलकियां जारी कर दी गई।